आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। भारत और बरतानिया ने अपने दो तरफा ताल्लुकात को अगले 10 सालों में जामे स्ट्रेटेजिक शराकत की सतह तक ले जाने के मकसद से एक रोड मैप को मंजूरी दी है और दुनिया की 5वीं और 6ठी मईशत के माबेन वसी तर तजारती शराकत का ऐलान किया है। यह अहम फैसला वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के माबेन वर्चुअल सरबराही इजलास में किए गए हैं। इजलास में भारत बरतानिया ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप माहदा, माइग्रेशन और ट्रैफिक पार्टनरशिप माहदा, डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी, टेली मवासलाती और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन के लिए मुश्तरका एलामिया, कस्टम से मुतल्लिक अमूर में बाहमी इंतजामी ताउन समेत 8 माहदों पर भी दस्तखत हुए हैं। जॉनसन के दौरा भारत का मंसूबा 2 मरतबा तय हुआ था, लेकिन कोविड की सूरत हाल की वजह से दोनों को मुलतवी करना पड़ा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जॉनसन के साथ उनकी गुफ्तगू बहुत मानेखेज और कामयाब रही है और दोनों ने 2030 तक भारत और बरतानिया के ताल्लुकात को मजमूई स्ट्रेटेजिक शराकत की सतह तक ले जाने के लिए एक रोड मैप को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के माबेन आज़ादाना तिजारत के माहदे के तहत वसी तर तिजारत शराकत दारी के आगाज का खैर मकदम करते हैं, जिसका मकसद 2030 तक दो तरफा तिजारत को दोगुना करना है। सेहत, टेक्नोलॉजी और तवानाई वगैरह के शोबों में भी कई नए इकदाम पर भी इत्तेफाक किया गया है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि उन्होंने कोविड-19 के ताउन पर तबादुल ख्याल किया है। The first big deliverable of the summit was the launch of the Roadmap 2030. Last year, when the two prime ministers had spoken on telephone, they had agreed to make this roadmap to transform India-UK ties, and today the two leaders launched the roadmap. The implementation of the roadmap will elevate the India-UK relationship into a comprehensive strategic partnership. You can go through the roadmap again, it has been uploaded on our website, but it is a comprehensive list of actions and activities that will take place over the next few months and years. And there are 5 areas which have been identified. One is, of course, increasing people-to-people contacts, trade and economy, defense and security, climate action, and health. Its implementation will be closely monitored through an annual strategic review meeting at the foreign ministers level, and this meeting will then report the progress to the two prime ministers. Another very important and I would say a big ticket announcement of the virtual summit was the declaration of enhanced trade partnership. The two-way trade between India and United Kingdom in 2019-20 was of the order of 15.4 billion US dollars. Although it has been rising in the recent years, the figures do not reflect the true potential of trade between the world's 5th and 6th largest economies. Moreover, we believe that Brexit has provided tremendous new opportunities for both countries. To seize them and unlock the true potential, the two leaders announced their intent to negotiate a comprehensive and balanced FTA, including consideration of an interim trade agreement for delivering early gains. The ambition, the two leaders agreed today, was to more than double the bilateral trade by 2030. As part of the confidence building measures, they have also agreed on an early market access package. Under this, the UK will open up the fisheries sector for more Indian players, facilitate more opportunities for nurses, recognize Indian seafarer certificates, and also enter into a joint dialogue on a potential social security agreement. In return, India has agreed to UK's asks on fruits, medical devices, and mutual recognition of master's degrees, and also work towards reciprocal opening of legal services in the future. These actions are likely to generate 20 to 25,000 new direct and indirect jobs in India. The two leaders also discussed the global pandemic situation and the ongoing cooperation in the fight against it. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Johnson from the अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने कहा है कि ब्राज़ील के साथ साथ उन्होंने भारत को भी इमदादी सामान फराहम किया है और इस सिलसिले में उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी बात की है कि कोरोना वायरस की वजह से जो मुल्क में हालात बने हुए हैं, अमेरिका इस मुश्किल घड़ी में भारत के साथ खड़ा है।
to Prime Minister Modi. What he needs most is he needs the material and the parts to be able to have the machines that can make the vaccine work. We're sending that, we're sending oxygen, we're sending a lot of precursors. So we're doing a lot now. How about With regard to the AstraZeneca vaccine which we had, we have sent that back. वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने G7 इजलास से कबल अपने एक पैगाम में कहा है कि कोरोना वायरस एक आलमी चैलेंज है और भारत इस वक्त इस वबा से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि इसके खतरनाक होने के बहुत सारे वजूहात हैं और इस आलमी मर्ज को ख़त्म करने के लिए सभी ममालिक को मिलकर इसे ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। G7 had its own agenda, this G7, and there are 4 of us who are guests, ourselves, Australia, South Korea, and South Africa. The agenda already had COVID very much in it, because it is today the biggest challenge, but not just India, the entire world faces. Now, when it comes to the G7 foreign ministers, bear in mind, I am pretty much continuously in touch with all of them. Now, they actually have been through it, many of them. You know, the US has been through it, UK has been through it, Germany, France, Italy. And not just been through it, I mean, they've been through a very, very severe form of it last year and the beginning of this year. In fact, if you look at the, proportionally, in many cases, their intensity is as much as we are going through right now in India. In some ways, it is even more than what we are going through. And a lot of our situations and our stresses today, the hospital situation, the oxygen situation, look, New York has seen it, France has seen it, Italy has seen it. So I was, in fact, though he's not here, just coming in, was talking to my counterpart in Portugal. And he was telling me, he said, look, we just a few months ago, we went through it. We had the highest per capita cases and fatalities. So, but we've come through it. So I think my message going into G7 is, look, this is a global challenge. Everybody knows that. All of you have been through it. We are going through it right now. There are various factors and reasons why it's as serious and severe as it is. And global problems, a global pandemic requires a global effort. And in the past, we have contributed to that global effort, being part of other people's solution. And I am very sure, beginning with, the meeting I've already had with Secretary Blinken yesterday, I think the rest of the... तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने आज राजभवन में तीसरी बार मगरबी बंगाल के वज़ीर आला के ओहदे का हलफ उठाया है। गुज़श्ता 2 मई को असम्बली इंतखाबात के नताइज में उन्होंने तारीखी और नुमाया कामयाबी हासिल की। राजभवन में गवर्नर जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया, जबकि कोविड-19 की वजह से हलफ बर्दारी की तकरीब को बहुत ही सादगी के साथ अंजाम दिया गया। आसाम, बिहार, दिल्ली, गोवा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल समेत पूरे मुल्क की 13 रियासतों में 16 खवातीन वज़ीर आला बनी। पहली वज़ीर आला सुचिता कृपलानी 1908 में पैदा हुई थी, जबकि महबूबा मुफ्ती 1959 में पैदा हुई। सबसे कम उम्र वज़ीर आला के तौर पर राबड़ी देवी 39 बरस की उम्र में वज़ीर आला बनी, जबकि सबसे ज्यादा उम्र दराज वज़ीर आला आनंदीबेन पटेल 73 बरस में बनी। 3 रियासतों से 2 वज़ीर आला बनी हैं, तमिलनाडु से वीएन जानकी रामचंद्रन और जयललिता, और उत्तर प्रदेश से मायावती और उमा भारती, और दिल्ली से शीला दीक्षित और सुषमा स्वराज शामिल है। सबसे ज्यादा 5 बार वज़ीर आला बनने का सहरा जयललिता को हासिल है। ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয়ে যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্য সমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদাতিরেকে
আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। Now I can go to दुनिया भर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और दिन ब दिन खौफनाक शक्ल इख्तियार कर रहा है। भारत में मुसलसल 14 रोज भी 3 लाख से ज्यादा नए मस्बत मामले दर्ज हुए हैं। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 3,82,602 नए मस्बत मामले सामने आने के साथ ही मुतासर अफराद की तादाद बढ़कर 2,66,148 पहुंच गई। इस दौरान 3,39,000 से ज्यादा मरीजों को अस्पतालों से रुखसत भी किया गया और मुल्क में अब तक 1,69,51,731 अफराद कोरोना को शिकस्त दे चुके हैं। मुल्क में एक्टिव केसेस में मुसलसल इजाफा होने से उनकी तादाद 34,87,229 पहुंच गई है। वहीं 24 घंटों के दौरान मुल्क में मजीद 3,780 मरीजों की मौत होने से मरने वालों की मजमूई तादाद 2,26,188 पहुंच गई है। उधर जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अब तक के रिकॉर्ड 4,650 मस्बत मामले दर्ज हुए हैं, जबकि 24 घंटों के दौरान 37 मुतासरीन की मौत के साथ ही मालकून की मजमूई तादाद 2,458 पहुंच गई है। मस्बत मामलों में वादी कश्मीर के अब तक के सबसे ज्यादा 3,178, जबकि जम्मू सूबे से 1,463 मामले दर्ज किए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रिमार्क्स करते हुए कहा है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की फराहमी न होने की वजह से कोविड-19 के मरीजों की मौत एक मुजरिमाना फाल है। ऑक्सीजन सप्लाई चेन को यकीनी बनाने के लिए हुकाम को सख्त मेहनत करने की जरूरत है, वरना इस तरह जानों का ज़िया होना नस्ल कुशी से कम नहीं है। यह रिमार्क्स लखनऊ और मेरठ अजला में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोविड-19 के मरीजों की हलाकत के हवाले से सोशल मीडिया पर कुछ खबरों के सिलसिले में किया गया था। अदालत ने वाकयात की तहकीकात का भी हुक्म दिया है। जस्टिस सुधारत वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार पर मुश्तमिल 2 जजों की बेंच ने रियासत में कोविड-19 के फैलाव और क्वारंटाइन मराकज की हालत से मुतल्लिक मफादामा की एक कानूनी दरख्वास्त पर यह हुक्म सादिर किया है। मफादामा की दरख्वास्त पर जस्टिस सुधारत वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार ने कहा है कि उन्हें यह मुशाहदा करने में तकलीफ है कि सिर्फ अस्पतालों में ऑक्सीजन की फराहमी न करने की वजह से कोविड मरीजों की मौत हो रही है, जो एक मुजरिमाना फाल है और उन लोगों के लिए जरिए यह नस्ल कुशी से कम नहीं जिनको ये काम सौंपा गया है कि वो ऑक्सीजन की मुसलसल खरीदारी और सप्लाई चेन को यकीनी बनाएं। स्कूलों की फीसों में कमी के मुतालबात के दरमियान अदालत उज़्मा ने तालीमी इदारों से फीसें कम करने को कहा है, क्योंकि उनके चलाने के अखराजात ऑफलाइन क्लास के साथ ही कम हो गई हैं। बेंच ने कहा है कि 2020-21 तालीमी साल का है। अदालत ने स्कूलों से यह भी मुतालबा किया कि वो फीस की अदम अदायगी या बकाया फीसों की वजह से किसी भी तालिब इल्म को ऑनलाइन या जिस्मानी क्लास में जाने से न रोके। जस्टिस एम खानवेकर और दिनेश महेश्वरी के बेंच ने डिवीजन बेंच ने कहा है कि स्कूलों को वबाई अमराज के दरमियान लोगों को दरपेश मुश्किलात के बारे में एहसास होना चाहिए और इन मुश्किल वक्त में तलबा और उनके वालिदैन की मदद के लिए इक़दाम करना चाहिए। कानून के मुताबिक स्कूल इंतजामिया सरगर्मियों और सहूलियात के हवाले से फीस नहीं इकट्ठा कर सकती हैं जो दरहकीकत उनके काबू से बाहर के हालात की वजह से उनके इसकी तलबा को फराहम नहीं की जाती हैं या उनसे फ़ायदा नहीं उठाती है।
सरहदी जिला राजौरी के सब जिला नौशहरा में रात को उस वक्त एक शादी में सनसनी फैल गई जब एक एसपीओ ने हवा में गोली चलाई। मकामी लोगों ने इल्जाम आयद किया कि शादी में कुछ नौजवान आइसक्रीम खा रहे थे कि एसपीओ ने नौजवानों पर मास्क न पहनने पर तू तो मैं शुरू हुई हैं, जिस दौरान एसपीओ ने हवा में गोली चला दी, जिससे शादी में लोग दहशत में पड़ गए। बाद में पुलिस ने एसपीओ को हिरासत में ले लिया। लोगों ने इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मिस्त्री जी उनकी लड़की की शादी थी, उस शादी पे आए हुए थे खाना खाने के लिए। तो वो जब खाना खाने के लिए उधर आए तो उधर आइसक्रीम खा रहे थे, तो उन्होंने बोला भाई तूने मास्क नहीं लगाया। तो इन्होंने बोला कि मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, तो आइसक्रीम खाते मास्क कहाँ लगाया। उसने दारू पी हुई थी, उस बंदे ने दारू पी हुई थी एसपीओ ने ज्यादा, तो उसको अपनी होश नहीं थी भाई मैं क्या है। उसने बोला मैं गोली मार दूंगा, 10 मिनट इधर ही रुक तू। ये रुका, उसने गन काकी तो उसने कहाँ सेफ है कि जिस एसपी को अपना पता ही नहीं है कि मेरे पास कितनी पावर है, मेरे पास क्या ताकत है। एक एसपी के चला जाए शादी वाले घर और वहां पे जाके किसी को बोले कि मास्क नहीं पहना है, तो उसकी सजा ये है कि उसको फायर निकाले। उसने खुद भी नहीं डाला था। जो गुंडागर्दी है ये उसकी एक निशानी है। ऐसे लोगों की वजह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट जो है बदनाम होता है। डीआईजी राजौरी पुंछ रेवंत श्री विवेक गुप्ता जी, मैडम एसएसपी, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस लड़के पर, इस एसपीओ पर ऐसी कार्रवाई हो और ऐसे दफे लगना चाहिए ताकि आने वाले टाइम में और कोई ये लड़कों ने पहले घूम फिर के अपनी जान बचा ली। अगर कोई इनकी जगह हिलने वाला व्यक्ति, बीमार व्यक्ति जो वहां से हिल ना पाता, तो शायद वो आज ऊपर वाले को प्यारा हो चुका होता। आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से जहां हर एक शोबा मुतासर है, जिस दौरान लोग काफ़ी परेशानी में हैं, वही जम्मू कश्मीर में भी मुख्तलिफ कारोबार से जुड़े लोगों का कारोबार भी मुतासर हुआ है। ज़िला उधमपुर में सालों से फूलों का कारोबार करने वाला एक नौजवान भी आलमी वबा का शिकार हुआ है और इस सिलसिले में वो काफ़ी परेशान है। हमारे नुमाइंदे ने मुतासर नौजवान से बात की, उन्होंने इस हवाले से क्या कुछ कहा, देखते हैं। कोरोना की वजह से कई लोग आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। मैं चाहे वो व्यापारियों की बात करूं या आम जनता की बात करूं, लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं। पिछले साल से ही जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और रोज़मर्रा का जो उनका कार्य है वो भी करने में असमर्थ हैं। गोल मार्केट में एक फूल विक्रेता हैं जो पिछले 22 साल से एक ही जगह पर फूल बेचते हैं, लेकिन आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि वह फूल बेचना भी उनके लिए मुनासिब नहीं हो रहा है। हालांकि शादियों का मौसम महीना चल रहा है और उसके बाद भी जो है देखिए ये फूल खरीदने वाला कोई यहाँ पर नहीं है। काफ़ी कम संख्या में लोग यहाँ पर जो है फूल लेने के लिए आते हैं। हालांकि ये उधमपुर का मेन जो पॉइंट है, गोल मार्केट है, यहाँ पर हर जगह से जो है चौराहा है और हर जगह से लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको पहले कहा कि लोग काफ़ी ज़्यादा आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, ये फूल विक्रेता हैं जो कई सालों से यहाँ पर इनका यहाँ पर एक स्टॉल लगता है और लोग यहाँ पर फूल लेते हैं, ताज़ा फूल यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है, ये भी आर्थिक दौर के मंदी से गुजर रहे हैं। जी नाम बताएं आपका। मेरा नाम बिल्ला फ्लावर है। गोल मार्केट में बैठता हूँ मैं। और मैंने क्या परेशानी आ रही है? जिस तरह से अभी शादियां भी चल रही हैं लेकिन आपके फूल अभी तक बिके नहीं है, तो क्या क्या परेशानी आपको? सर बहुत मंदा है, क्या करें। पिछले साल में भी कोई 5-6 लाख का घाटा बढ़ा, इस साल में भी बहुत मंदी हालत है हमारी। रोज की बिक्री होती है 1500, 1200, 1500, 1200 इतनी होती है सारी खींच कर, और फूल सारे खराब हो गए। आज भी 1.5 क्विंटल फूल फेंका हो। कहाँ से फूल कहाँ से आते हैं? जम्मू से आते हैं। 120 रुपये kg आता है हमें फूल। पीछे से रेट भी बढ़ गया होगा? रेट बढ़ गया, और जो गाड़ी वाला आता है एक नग का 500-600 रुपये लगता है। वो ऑटो आएगा 2200, 2200 रुपये मिलता है। मैंने सुना है कि आपके जो ये फूल हैं कटरा भी जाते हैं और बाकी जगहों पे जाते हैं, तो आप क्या कहीं वो सिलसिला नहीं जाते हैं? अभी गाड़ियाँ बंद, कहाँ में जाएंगे, क्या करेंगे? तो काफी ज्यादा परेशानी अब आके। आपका यही व्यापार है, यही चलता है? हमारा यही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, करें क्या करें। मम्मी पापा है, उनको भी देखना है, बच्चों को देखना, अपना भी देखना। दिहाड़ी लगे तो क्या करेंगे हम। अभी शादियां जैसे चल रही हैं और भी जैसे समारोह चल रहे हैं, तो अभी कोई लोग लेने नहीं आ रहे? हाँ, अरे
कैसे आएंगे? कोई आता है बीच में, वो भी आता है, बोलते भैया इतने दो, इतने इतने ये पैसे नहीं है, वो कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। पिछले साल भी जिस तरह कोरोना चला था, पिछले साल भी काम हो पाया था आपका? पिछले साल क्या पूरा घाटा बढ़ा है पिछले साल का। तो अभी आज कितने मंगाए थे आपने? आज मेरे फूल आए थे 1 क्विंटल। तो कितने अभी तक कितने लगे हैं? 20 केजी सारे, 20 केजी सारे 20 भी नहीं बिके हैं, अभी बचे हैं, आधे से खराब हैं। करूँ क्या? आपका घर का खर्चा इसी पे चलता है? यही काम है हमारा, और कोई काम नहीं है, खाली फूल बेचना है, बस यही काम है। मैंने 22 साल हो गए इधर बैठे हुए, जो मैं इधर तब बैठा था जो 5 रुपये के 20 हाथ देता था, 5 रुपये के 20 हाथ। बड़ी मुश्किल से मैंने थोड़ा बनाया और 1-1 रुपये इकट्ठा किया। करूँ क्या कैसे? लोग आगे तंग करते हैं, वो पैसे निकाल, मैं कहाँ से दूंगा? गरीब बंदा हूँ, दिहाड़ी लगाने वाला हूँ, मैं नौकर नहीं हूँ, कुछ नहीं है, यही धंधा है मेरा। बिल्कुल जी, देखिए बहुत मंदी हालत है इधर, किराया कहाँ से दूंगा मैं? रहते कहाँ हैं आप? इधर ही रहता हूँ फौजिया। काफी ज्यादा परेशानी आपको आ ही रही है। बहुत मुश्किल है, जैसे से मुश्किल है, करें वो करें, क्या करें सर बताओ? आप दिखा सकते हैं जो फूल आपके खराब हुए हैं, दिखा सकते हैं? ये देखिए, ये देखिए, मैं दिखाना चाहूँ। देखिए ये फूल सारे खराब हो चुके हैं। ये देखिए फूल सारे खराब हो चुके हैं और एमएच में ये कह रहे हैं कि अभी 3 जो है इनके गड्ढे वहां पे एमएच में पड़े हुए हैं। और जिस तरह से देखिए ये ताजा फूल हैं, ये देखिए ये ताजा हैं, लेकिन ये भी अभी तक नहीं बिके हैं। सारे 6 माला बिकी है अभी तक, 6 माला बिकी है, 6 बिकी हैं, 50 में से सिर्फ 6 ही बिक पाई हैं। तो देखिए कि किस तरह से कोरोना काल जो है लोगों पर कितना बुरा प्रभाव डाल रहा है। 22 साल से यहाँ पर ये स्टॉल लगाते हैं, लेकिन जिस तरह से इनका कहना है कि इनका पूरा परिवार इसी से पलता है और लोग जो हैं अपने व्यवसाय तो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह कोरोना काल सब लोगों पर भारी पड़ रहा है, व्यापार भी लोगों का जो है खत्म होता जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार को भी इस पर गहनता से सोचना होगा। जो छोटे तबके के लोग हैं, खासकर जो ये लोग दिहाड़ी जो लगाते हैं, इनके बारे में भी सरकार को सोचना पड़ेगा। जिस तरह से इनका परिवार पूरा इसी काम पे पलता है और कहीं ना कहीं जो है अब कोरोना की वजह से जो इनका व्यापार भी जो है खत्म होने पे आ गया है और ये भी कहीं ना कहीं परेशान है। आर्थिक मंदी का दौर बहुत ज्यादा चल रहा है। सरकार और प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि ये छोटे तबके के जो लोग हैं इनके बारे में कुछ इन्हें जो है कुछ इनके बारे में सोचा जाए, ताकि ये अपने घर का जो है खर्चा चला सके। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन दुबे के साथ आशीष दत्त, जेके चैनल, उधमपुर। सुरनखट के ऊपर सांगा गांव के लोगों ने शिकायत की है कि इलाके में साल 2015 में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर तामीराती काम शुरू किया गया, मगर नामालूम वजूहात की बिना पर 6 साल गुजरने के बावजूद भी इसे पाए तकमील तक नहीं पहुंचाया गया, जिसके नतीजे में इलाके के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों का कहना है कि तिबी सहूलियात बहम रखने के लिए अगरचे 6 साल कबल इंतजामिया ने इलाके में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर काम शुरू किया, जिस पर एक कसीर रकम भी खर्च करके एक मंजिल तक पहुंचाया गया, मगर बदकिस्मती से 1 साल के बाद ही काम को रोक दिया गया और अभी भी वो तशनी तकमील है। जबकि मुतल्लिका महकमा की जानिब से एक पुरानी इमारत में तिबी खदमात अंजाम दे रहा है, जो कि काफ़ी खस्ता हो चुके हैं, जिसकी वजह से कसीर आबादी को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अब लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की है कि हेल्थ सेंटर को पाई तकमील तक पहुंचाया जाए ताकि आवाम की मुश्किलात दूर हो सके। पंचायत सांगला है ये, तो यहाँ पे ये पीएचसी का काम आज से तकरीबन 6 साल पहले शुरू हुआ था और आज तक जो 1 साल में ही ये लेंटर लेवल तक पहुँच गया काम, और ये काम जो है वहीं पर रुक गया है। न जाने क्या वजूहात बनी हैं, वो डिपार्टमेंट खुद बताएगा, तो हेल्थ वाले बता सकते हैं। तो इसमें आप देखें अगर, तो इसकी विंडोज़ और डोर जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। तो अब जब भी काम ये शुरू होगा तो इसका नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि विंडोज़ और डोर्स जो हैं दोबारा से लगाने पड़ेंगे। तो आज की इस महामारी के दौर में कोविड-19 चल रहा है, तो सब लोग जानते हैं कि स्कूलों को खाली किया जा रहा है। सुरनकोट के काफ़ी स्कूलों को खाली करके कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं। लिहाजा हमारे पास ये जगह मौजूद होने के बावजूद इतनी बड़ी बिल्डिंग जिसमें 10 कमरे हैं, 6 बाथरूम हैं और बहुत बड़ा एरिया है, 3 कनाल का रकबा है इसका, तो इसको ही अगर पाए तकमील तक पहुंचाया जाए तो कितने लोगों को फायदा हो सकता है। इस टाइम जो पीएचसी है वो कहाँ पे चल रही है? ये पीएचसी अभी जो हमने देखी है, तो ये नीचे एक कच्चे मकान में एक रूम को रेंट पर रखा हुआ है, तो उसमें चल रही है। उसकी भी खस्ता हालत है, तो वो छत जो है कच्ची छत कभी भी गिर सकती है बारिशों की वजह से। क्या कहेंगे आप गवर्नर साहब से? गवर्नर साहब से हमारी यही अपील है कि आज जब 370 तोड़ा गया तो बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन ये दावे जो है जमीन पर हमें दिख नहीं रहे।
तो इसलिए हमारा यहाँ पे गवर्नमेंट का नहीं बल्कि अवाम का जो है टैक्स का पैसा 30 लाख रुपया यहाँ लग चुका है और 30 लाख जो है उसका पता ही नहीं चला कि वो पैसा गया कहाँ है। तो लिहाजा इसको जल्दी ही पाया तकमील तक पहुँचाया जाए और इसका नोटिस लिया जाए और डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट पुंछ की एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा जाए कि ये सांगला। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।